کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آج کا نوجوان مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ شاید بیزار ہوتا جا رہا ہے؟ جیسے جیسے اس کے سامنے کوئی نئی سائنٹیفک ریسرچ آتی ہے، وہ جیسے جیسے کوئی سائنس کا نیا نظریہ پڑھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا یہ پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کر رہا ہے کہ سائنس مشاہدات پر مبنی، تجربات پر مبنی ایک حقیقی علم ہے، جبکہ اس کے برعکس مذہب مین میڈ لاز ہیں، پرانے قصے کہانیاں کہ جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کا کوئی حقیقی ثبوت موجود نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے ان پہ ایمان رکھنا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ ہمیں ہمیشہ مذہب اور سائنس کے درمیان جنگ دکھائی گئی ہے۔ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ تم نے مذہب پہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھنا ہے، جبکہ سائنس مذہب سے ایک ٹکراتی ہوئی چیز ہے۔ لیکن در حقیقت سائنس اور مذہب میں کہیں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مذہب ہمیں کیوں کا جواب دیتا ہے، جبکہ سائنس ہمیں کیسے کا جواب دیتی ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں کیسے آتا ہے، اس کے پیچھے کا پروسیس سائنس ایکسپلین کرے گی، اس کے پیچھے کی بایولوجیکل ریزننگ، اس کے پیچھے کا بایولوجیکل پروسیس وہ ہمیں سائنس بتائے گی۔ پودا پھل کیسے دیتا ہے، ایک بیج سے تناور درخت تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، یہ سائنس نے بتانا ہے۔ لیکن یہ تمام مخلوقات آج اس دنیا میں موجود کیوں ہیں، اس کا جواب مذہب نے دینا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ خدا نے بتانا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے علاوہ باقی موجودات کا فلسفہ مذہب بتائے گا، لیکن اس کا پروسیس سائنس سمجھائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ سائنس اور مذہب دو متضاد علوم کا نام ہے جن میں سے ہم نے کسی ایک کو چننا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک مذہب اور ایک ایتھیسٹ، ان کا اختلاف بنیادی کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس نقطے پہ آپ کو لے کے چلوں گا کہ دو ہی اس وقت بنیادی نظریے ہیں۔ اگر بات مذہب کی اور ایتھیزم کی جائے تو اس وقت دو بڑے نظریات پائے جاتے ہیں، یا نیچرل سلیکشن یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن۔ اگر کوئی انسان ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، تو یہ مانتا ہے کہ دنیا نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی، اس دنیا کو بنانے والا کوئی خالق نہیں، اس دنیا کو بنانے والا کوئی مدبر نہیں، بلکہ یہ جو آج موجودات ہیں یہ نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اور اگر کوئی مذہب پر یقین رکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے، کوئی انٹیلیجنٹ کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے۔ اگر ایک ملحد ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا نیچرل سلیکشن سے وجود میں آئی، تو اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس دنیا میں موجود تمام چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں، کہ جو مذہب کہتا ہے۔ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے ہر چیز کو کامل بنایا، اکمل بنایا، پرفیکٹ بنایا، لیکن نیچرل سلیکشن یہ کہتی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہے، بلکہ جو پرفیکٹ تھا وہ بچ گیا ہے، اور ان کے پاس اس کی دلیل کے طور پہ فاسل ریکارڈز موجود ہیں اور باقی ریسرچ موجود ہے۔ فار ایگزامپل وہ ایک جراف کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر آپ پرانے ریکارڈز دیکھیں تو مختلف سائز کی گردنیں رکھنے والے جراف موجود تھے، ایسے جراف جن کی گردن کا سائز مختلف ہوا کرتا تھا۔ کچھ جراف بہت لمبی گردن کی ہوا کرتے تھے، کچھ زرافے چھوٹی گردن کے ہوتے تھے۔ تو جن کی گردن بڑی ہوتی تھی ان کو درختوں کے پتے کھانے میں مشکلات آئیں، اور جن کی گردن نسبتاً چھوٹی تھی وہ درختوں کے پتے آسانی سے کھا سکتے تھے۔ لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑی گردن والے زرافے تھے ان کا اس دنیا میں رہنا مشکل ہوا، اور جو مناسب گردن والے زرافے موجود تھے وہی آج اس دنیا میں سروائیو کر پائے۔ تو آج جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سروائیو کر گئی ہیں، اور جو پرفیکٹ نہیں تھیں وہ سروائیو نہیں کر پائیں۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آج جتنی بھی موجودات ہیں یہ پرفیکٹ ہیں، جبکہ یہ پرفیکٹ نہیں تھیں، یہ فٹسٹ ٹو ارتھ تھیں، اور جو فٹسٹ نہیں تھیں وہ موجود نہ رہیں۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا ریزسٹ کرتے ہیں اینٹی بایوٹک کے خلاف۔ جب ایک انسان کو اینٹی بایوٹک لگائی جاتی ہے اس کی باڈی میں بیکٹیریا مارنے کے لیے، تو کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو اس اینٹی بایوٹک سے نہیں مرتے، اور جب وہ ایک دفعہ اس اینٹی بایوٹک کا سامنا کرنے کے باوجود نہیں مرتے تو وہ اپنے اندر مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں، وہ مدافعت پیدا کر لیتے ہیں اس اینٹی بایوٹک سے لڑنے کی، اور وہ جلدی جلدی ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی باڈی پہ اینٹی بایوٹک کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا نے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا۔ تو وہ بیکٹیریا جو پہلے
लड़ने की सलाहियत नहीं रखता था, अब एनवायरनमेंट के साथ साथ इवॉल्व होके उसने अपने अंदर ये सलाहियत डेवलप कर ली है कि वो अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। तो इसी तरह ये कायनात चलती है कि एनवायरनमेंट के मुताबिक चीज़ें अपने आप को एडजस्ट करती हैं और इवॉल्व होती हैं, और यहीं से नज़रिया इर्तिका का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है कि चीज़ें इर्तिका के नतीजे में पैदा होती हैं। ऐसा नहीं था कि चीज़ें पहले से ही कामिल और परफेक्ट थीं, बल्कि एवोल्यूशन हुआ। एनवायरनमेंट के मुताबिक चीज़ अपने आप को एडजस्ट करते करते कई साल के नतीजे में अपने आप को परफेक्ट कर लेती है। इसी तरह एक एग्जांपल फ्रॉग की है, यानी मेंढक, कि मेंढक हल्के कलर के भी मौजूद थे, लाइट कलर के और डार्क कलर के भी मेंढक मौजूद थे, लेकिन वो जो हल्के कलर के मेंढक थे वो शिकार आसानी से हो जाते थे, और डार्क कलर के जो मेंढक हैं वो छुप आसानी से जाते थे, लिहाजा उनका शिकार आसानी से मुमकिन ना हुआ। वो आज सरवाइव कर गए और हल्के कलर के मेंढक मौजूद नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डार्क कलर के मेंढक को देख के कहें कि इसके पीछे की हिकमत मौजूद है, इसको बड़े प्लान से बनाया गया है कि ये शिकारी से बच सके, बल्कि जो बच नहीं सकते थे वो आज सरवाइव नहीं करते, वो आज मौजूद नहीं है। तो नेचुरल सिलेक्शन ये कहती है कि चीज़ों के पीछे हिकमत नहीं होती, बल्कि जो बच जाते हैं वो आज मौजूद हैं, जो फिटेस्ट टू अर्थ होते हैं वो आज मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ मजहबी शख्स ये कहता है कि इस कायनात में कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर मौजूद है, चीज़ें नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में वजूद में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर्स का मुताला करें, चाहे वो इंसानी स्ट्रक्चर हो या चाहे वो यूनिवर्स हो, आपको इतनी फाइन ट्यूनिंग नज़र आएगी, आपको इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर नज़र आएगा, आपको इतनी खूबसूरत प्लानिंग नज़र आएगी कि आप ये यकीन किए बगैर नहीं रह सकते कि इस प्लानिंग के पीछे कोई प्लानर मौजूद है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं। आप इस वक्त जिस ज़मीन पे बैठे हैं, ये ज़मीन अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अगर आप कभी अपनी ज़मीन को मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखें, आपको आसानी से मिल जाएगा कि ज़मीन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये हल्की सी अपनी एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। और अगर ये इस एक्सिस की तरफ ना झुकी होती और बिल्कुल स्ट्रेट होती, तो शायद जो मौसम आज ज़मीन पर मौजूद है, इस तरह ये मौसम 4 मौसम ना होते। और अगर ये ज़मीन मुकम्मल एक्सिस की तरफ झुकी हुई होती तो फिर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती, किसी रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती। लेकिन ज़मीन इस वक्त जिस डिग्री पर झुकी हुई है, ये ही वो आइडियल और बेहतरीन एक्सिस है कि जो लाइफ को जनरेट करने के लिए और एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। किस तरह ये रैंडम हो गया कि जिस ज़मीन पर खुदा ने ज़िंदगी का आगाज़ करना था, उसी ज़मीन को इतनी एक्सेस पर झुका दिया कि अगर ये 1 डिग्री भी आगे या पीछे हो तो शायद लाइफ पॉसिबल ना हो सके, और बाकी कोई प्लैनेट भी इस एक्सेस पे झुका हुआ नज़र नहीं आता। इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, इंसान की बॉडी में जो हड्डियाँ होती हैं, ऑलमोस्ट मेल और फीमेल की हड्डियाँ तकरीबन बराबर होती हैं। जिस साइज़ की हड्डी मेल में होती है उसी साइज़ की ही हड्डी फीमेल में होती है, बोन्स बराबर होती हैं, साइज़ बराबर होते हैं। लेकिन एक हड्डी ऐसी है कि जो मेल और फीमेल में डिफरेंट है, और वो है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन एक ऐसी बोन है जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है, जिसके पीछे का रीज़न ये है कि फीमेल ने चूँकि बेबी को बर्थ देनी है और डिलीवरी के लिए डेफिनेटली ज़्यादा स्पेस चाहिए, जिस वजह से फीमेल की पेल्विक बोन को बड़ा रखा गया, और एक मेल को चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा उसकी ये बोन उस तरह वाइड नहीं है। तो 206 हड्डियों में से सिर्फ एक बोन का फ़र्क होना ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे प्लानिंग नज़र आती है, इसके पीछे डिज़ाइन है। और अगर ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन मौजूद है तो डिज़ाइनर भी मौजूद है। अगर आपके सामने एक एप्लीकेशन मौजूद हो कि जिसको बहुत बेहतरीन और इंतहाई पेचीदा तरीके से डिज़ाइन किया गया और प्रोग्राम किया गया हो, तो आप ये माने बगैर नहीं रह सकते कि इतनी पेचीदा एप्लीकेशन को किसी ने प्रोग्राम नहीं किया, उसका प्रोग्रामर ज़रूर मौजूद होगा। एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जिसके पीछे की कंप्लीट डिज़ाइनिंग और हिकमत समझ में आती है। कभी आपने नोट किया कि जब आपको कट लगता है, जब आपको ज़ख़म लगता है, तो जो खून आपकी बॉडी से निकलता है थोड़ी ही देर बाद जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये एक बेहतरीन फीचर है इंसानी बॉडी का कि जिसको इंटेंशनली, जिसको ऑन द पर्पस, जिसको जानबूझकर रखा गया है इंसानी बॉडी में ताकि इसका खून ज़ाया ना हो सके। ये कैसे रैंडमली हो गया, इसके पीछे प्लानिंग मौजूद है। ये एक स्मार्ट फीचर है,
और स्मार्ट फीचर किसी भी बॉडी में इंस्टॉल करने के लिए एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर, इंटेलिजेंट प्रोग्रामर का होना ज़रूरी है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो मैं आपके सामने आने वाली वीडियोस में रखूँगा, कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि साइंस को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंसान खुदा के और करीब होता है, क्योंकि इंसान उन चीज़ों के पीछे की प्लानिंग और लॉजिक को समझता है तो वो प्लानर तक पहुँचता है, वो डिज़ाइनर तक पहुँचता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हमें इस्लाम और साइंस में लड़ाई दिखाई जाती है, तो साइंस तो एक ऐसा इल्म है कि जो खुदावंद मुतआल की बनाई हुई चीज़ों के पीछे का प्रोसेस समझता है। अल्लाह ताला ने आँख बनाई, आँख के काम करने का अंदाज़ देखो, ये आँख काम कैसे करती है, आँख देखती कैसे है, और उसको कॉपी करके कैमरा बना लो। तो खुदा का बनाया हुआ नेचुरल लॉ, उसको स्टडी करना, उसको समझना, ये आपको खुदा से दूर नहीं करता। तो साइंस खुदा के बनाए हुए नेचुरल लॉज को स्टडी करने का नाम है। कभी भी साइंस और इस्लाम की लड़ाई न करवाएं। और यही हुआ जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश हुई। वैसे तो नज़रिया इर्तिका बहुत पुराना है, इस पे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज मज़हब और एथियज़म के दरमियान जो जंग है उसमें एक बाब यही है, एवोल्यूशन। दो बड़े नज़रियात कि आया चीज़ें एवोल्यूशन के थ्रू आज दुनिया में मौजूद हैं या क्रिएशन के थ्रू। ये दो सेपरेट नज़रियात पाए जाते हैं। एवोल्यूशन मीन्स कि लाइफ स्टार्ट हुई, इवॉल्व हुई, और आज जितनी भी मखलूक़ात हैं ये चंद लाख साल पहले ऐसे नहीं थी, एवोल्यूशन के नतीजे में मौजूद है। और ऑपोजिट देखिए, ऑन द अदर हैंड क्रिएशन, हर चीज़ को खुदा ने बनाया। तो आया इन दोनों में से सच क्या है? तो आज का नौजवान जब ये सवाल अपने सामने रखता है और वो साइंटिफिक हक़ाइक़ को देखता है, वो साइंटिफिक नज़रियात को पढ़ता है, उसके सामने जब फॉसिल रिकॉर्ड्स आते हैं, उसके सामने जब साइंसी तहकीकात आती हैं, और उसके सामने जब एवोल्यूशन साबित हो जाती है, और जब इस्लाम या मज़हब उसको कह रहा है कि एवोल्यूशन गलत है और उसको दोनों में से किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को चुनना है, तो वो डेफिनेटली वो साइंसी रिसर्च को प्रेफर करता है। तो आया एवोल्यूशन और क्रिएशन ये दो अपोजिट चीज़ें हैं। एवोल्यूशन और इस्लाम को साथ साथ चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता, आने वाली वीडियो में इस पर बात करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।